Hello friends, this video is for the class 10th students and it is basically a class 10th chapter of physics, that is electricity. We will discuss it in detail and we will go to each and every question being discussed for this electricity, whether it is of 1 mark question or it is related to a definition or a full derivation with examples. So starting from electricity, अगर आपको electricity पढ़ना है तो you must know what is electricity all about. It is the basic part of our nature कि one of the most widely used forms of energy में electricity आती है, because electricity एक energy की ही form है. इसे हम electrical energy भी बोलते हैं. Every minute we are using so many electrical appliances like computers, like power pumps, vehicles, electromagnets. All these are the play of this ruler, that is the electricity. Electricity जिस एक basic चीज़ से चलती है उसे हम charge बोलते हैं. We have all around us the matter मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी कुछ एक वीडियोज़ में, in the videos of chemistry, that everything around us which has space and occupies weight, that is matter. किसी भी matter में there are certain protons, electrons and neutrons, out of which protons are positively charged, electrons are negatively charged and neutrons have no charge. Now the charge possessed by proton is a positive charge, while the charge possessed by the electron is called negative charge. However, neutron has the particle that has no charge. So always in the nature, like charges repel each other while unlike charges attract each other. For example, positive will repel the positive, negative will repel the negative, but positive will attract the negative. So electric charges जो हैं वो positive charges से भी बने होते हैं, negative charges से. It is a myth. Most of the people say that electricity है, it means electrons का flow हो रहा है. No, actually it is of two types. It can be made up of positive charges or negative charges, which we will discuss later on. Firstly, we must know that what are conductors and insulators. कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं, यानी वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्रीली मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑल द मेटल्स इन दिस यूनिवर्स आर कंडक्टर्स, वेयर एज इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं हैं या वो मूव नहीं कर सकते. सिंस देर इज़ नो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? दैट इज़ वाई इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चार्ज से एक चीज़ बनती है जिसे हम करंट कहते हैं, यानी चार्ज के फ्लो को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर आई. इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो को कहते हैं, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कहा आपको. रेट ऑफ फ्लो का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज जो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर फ्लो करता है. अगर एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मैटर से क्रॉस करेगा टाइम टी में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज करंट एंड ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर. अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चार्ज की डायरेक्शन में ही होगी. एंड दिस चार्ज, ये जो बात मैंने आपसे पहले की थी दैट इलेक्ट्रिक करंट आर ऑफ टू टाइप्स, वो इसी फिनोमेना से है. जब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करेगा तो पहली बात वो उसी की डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ़्लो कर रहा है, एंड दैट करंट इज़ कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट. वेयरएज अगर नेगेटिव चार्ज फ़्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. सी इन दिस इमेजेस, नेगेटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी, बट पॉजिटिव चार्ज अगर इधर फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी. इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर क्योंकि इंसुलेटर में protons and electrons are fixed at their position, and electricity is what about the movement of the charges. If the charges are present but they are not able to move, the electricity cannot be produced and it cannot flow through the any substance. Then there is a potential difference, which is a terminology. Listen to this definition perfectly. First of all, see this word potential. Potential means there is a potential of doing something, and difference means the difference. It means the one place is having the higher value and the other place is having the smaller value. For example, when we switch on the light, the electricity runs क्योंकि उस particular area में there is a lot of electricity, but where the tube light is fixed, there is no electricity. So potential difference means the difference between the 2 points, यानी potential difference between the 2 points. It means वो काम जो कि चार्ज को मूव करने के लिए लगा, work done per unit charge in taking the charge from one point to another,
उस काम को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो सबसे पहले यू विल राइट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखेंगे 1 वोल्ट, वर्क की जगह लिखेंगे 1 जाउल्स एंड चार्ज की जगह लिखेंगे 1 कूलम्ब, बिकॉज 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी ऑल्सो, एंड 1 कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे वाटर हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। देन देयर इज़ अ सेल। आपको पता है जितने भी हम सेल्स बैटरीज बनाते हैं या बैटरी होते हैं या बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं, दे आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम द बैटरी एंड द बैटरी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सेल जो है डिफरेंशियल पोटेंशियल जो है वो बैटरी या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेल से बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो कि इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन से ही जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी सेल को हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसका करंट स्टार्ट हो जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मीन्स इट इज़ नॉट डिस्टर्प्टेड एट ऑल एट एनी पॉइंट। डिस्टर्ब नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है एंड क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें एक सेल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्विच, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रिक सर्किट, अदरवाइज इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, इट इज़ डिस्टर्प्टेड या ये कहीं से खुला है, ओपन है, तो इट विल नॉट बी अ इलेक्ट्रिक सर्किट। देन सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो इट मस्ट कंटेन अ स्विच विच मीन्स अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। इसको हम कन्वीनियंटली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग सिंबल सी। ये बैटरी को रिप्रेजेंट या सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल के अंदर एक लॉन्ग यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और एक स्मॉल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है। देन देर इज़ एन एमीटर। एमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, बट रिमेंबर एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, जिससे हमें करंट को मेजर करते हैं उसकी सीरीज़ में लगाते हैं। एमीटर अगर आप लैब में देखें तो दिस इज़ द एमीटर इन द लैब, इट हैज़ अ ए साइन इन बिटवीन इट एंड देयर आर रीडिंग्स, जिससे आप रीडिंग्स लेते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। देन एमीटर जो है, ये देखिए ये अप्लायंस था, बल्ब था और उसके साथ हमने इसको सीरीज़ में लगा दिया। सीरीज़ का मतलब एक ही लाइन में लगा दिया, कहीं ऊपर या नीचे नहीं लगाना। वोल्ट मीटर की बात करें तो वो प्रेटस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट के, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। एंड इसकी स्पेसिफिक चीज़ क्या है? इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन दोज टू पॉइंट्स जहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर लैब में वोल्ट मीटर को देखें तो ऐसा वोल्ट मीटर दिखेगा, एक ब्लैक एक रेड यहाँ पर वायर्स लगती हैं और बल्ब अटैच होता है और ये वोल्ट मीटर पे वी साइन होता है और यहाँ पर इसकी रीडिंग्स आती हैं। जो भी हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसके जो दो पॉइंट्स हैं हमने कनेक्ट किए हैं उनके बीच में जो रीडिंग होगी करंट की पोटेंशियल डिफरेंस की वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड सी दिस इज़ द बल्ब एंड वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं और इन्हीं के पैरेलल हमने इसको लगा दिया। अगर हम बात करें कुछ एक कॉमनली सिग्नल्स की, तो आप देखिए एक इलेक्ट्रिकल सेल को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा लाइन पॉजिटिव, एक छोटी लाइन दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव। अगर बहुत सारे सेल्स को हमने इकट्ठा लगाया तो इट फॉर्म्स अ बैटरी। अगर एक ओपन सर्किट है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको हम प्लग की ऐसे लगाते हैं, दिस इज़ ओपन, एंड क्लोज्ड मीन्स कि करंट को हमने स्टार्ट कर दिया। किसी वायर के जॉइंट को ऐसे लगाते हैं और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग इज दिस। देन देर इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स बाय द टाइम अगर आपने 10 ओहम 5 ओहम 4 ओहम रेजिस्टेंस करनी हो तो उसको ऐसे करेंगे। और रेजिस्टेंस क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देन देर इज़ एम मीटर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट मीटर जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था साइमन ओहम। दे गेव द लॉ दैट इज़ कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमें ये बताती है कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को कांस्टेंट रख दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी।
जब हम इसको सही करेंगे इट मीन्स ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा एंड इट विल बिकम वी इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स जब आर कांस्टेंट होता है किसी गिवन कंडक्टर के लिए तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो रोकता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कोई भी अप्लायंस है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को रोके, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। एंड कंपोनेंट जो ऐसा करने के लिए हम लगाते हैं सर्किट में उसे हम रजिस्टर कहते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सर्किट के अंदर एक रजिस्टर होता है जो उसके अंदर करंट आने के फ्लो को मैनेज करता है, रेजिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रजिस्टर, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। देन इसका यूनिट, क्योंकि ओहम ने इसे डिस्कवर किया था तो इट इज़ ओहम एंड इट हैज़ अ ग्रीक लेटर डिनोटेड बाय दिस ओहम। अगर हम 1 ओहम की डेफिनेशन ले तो रेजिस्टेंस इज़ 1 ओहम। रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई, क्योंकि फॉर्मूला बना था V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से अगर R निकालना हो तो दैट विल बी V अपॉन आई। तो सबसे पहले जिसकी भी डेफिनेशन लेनी है आपने ये देखना है कि वो किसका सिंबल है और उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R की जगह 1 ओहम लिख दीजिए, V की जगह यू विल राइट 1 वोल्ट एंड I की जगह you will write 1 ampere, and this will be the definition of 1 ohm. So say that 1 ohm of resistance किसके इक्वल है, it is equal to the flow of 1 ampere of current conductor, जो कि potential difference कितना मेंटेन कर रहा है अपने दो पॉइंट्स के बीच में, 1 वोल्ट मेंटेन कर रहा है. So this is the कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है. इट मीन्स जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. इसीलिए जो लॉन्ग इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स. देन सेकेंड डिपेंडेंस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की. इट मीन्स कि जितनी चौड़ी और थिक वायर होगी उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ऑपोजिट होता है. इट मीन्स आर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया. सो मोर एरिया ऑफ द कंडक्टर फैसिलिटेट्स द मोर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मोर एरिया एंड थस डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस. इसीलिए थिक कॉपर वायर जो है वो लेस रेजिस्टेंस रखती है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो हो पाता है. और थिन वायर में क्योंकि मोर रेजिस्टेंस हो जाती है इसलिए उसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर पाता है. ठीक है, सो दिस वॉज द रीज़न. देन थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल. जितनी भी वायर्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होती हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी की डिफरेंट वैल्यू होती है. अब ये एक्सप्लेन करते हैं हम आपको. लाइक आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो उसको हटाकर हमारे पास ये आएगा रहो, तो आर आ गया रहो एल अपॉन ए के इक्वल में. सेंड फोर्थ इज टेम्परेचर. टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस भी उतनी ही कम होगी. मोरोवर ये जो रहो का कॉन्सेप्ट है, दिस रहो इज़ रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी वैसे एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी. और इसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे, सिंस रहो किसके इक्वल है, आर ए अपॉन एल के, तो हम आर की जगह ओहम लिखेंगे, ए की जगह मीटर स्क्वायर और एल की जगह मीटर. मीटर को मीटर से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट रहो की सिंबल्स आर ओहम मीटर, तो इसके ये यूनिट्स हैं ओहम मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ रहो इज़ ओहम मीटर. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी -8 से लेकर 10-6 ओहम मीटर तक होती है वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. इसकी कैटेगरी में सिल्वर और कॉपर आते हैं. और जिनकी रेजिस्टिविटी 12 से लेकर 17 तक होती है उनके वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं, यानी वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. अब आप इस एनसीईआरटी के चार्ट को अच्छे से देखिए. कंडक्टर्स में जितने भी मेटल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इनकी 10-8 से लेकर 10-6 तक की रेंज है, तो दे ऑल आर कंडक्टर्स. और जो इंसुलेटर्स हैं इनकी 10-10 से लेकर 10-12 तक है, दे ऑल आर इंसुलेटर्स. बट इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर देर इज़ एन अनदर कैटेगरी विच इज़ एलॉयज़. अब आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है व्हाट इज़ कॉन्स्टेंटन मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ मैंगनीन मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ निक्रॉम मेड अप ऑफ. सो इट इज़ एनसीईआरटी में मेंशन इन एनसीईआरटी, बट आप लोग कहेंगे कि ये तो एनसीईआरटी का पार्ट ही नहीं है, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द चार्ट, यू हैव नेवर फोकस्ड ऑन इट. सो कॉन्स्टेंटन जो है वो एक
एलॉय है कॉपर और निकल का। मैंगनीन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। एंड निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। और आप देखिए इसकी रेंज सिर्फ 10-6 ही है, तो 10-6 जो है वो एलॉयज़ की रेंज है। अब रेजिस्टिविटी की बात करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें, रियोस्टैट की बात करें, तो वो क्या है? रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। मींस अलग अलग वायर्स लगाना, अलग अलग अप्लाइंसेस लगाने से अच्छा लैब में एक बॉक्स होता है जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से, जिसमें अलग अलग ओहम्स बने होते हैं, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। बस हमें वो वाला ओहम जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कनेक्ट दी 100, वी वॉन्ट टू कनेक्ट दी 100 ओहम, तो हम 100 ओहम वाली की को निकाल देंगे तो उस रेजिस्टेंस वाले बॉक्स में 100 ओहम का रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे डिवाइस को जिसमें रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से, उसे रियोस्टैट कहते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड द सिंबल यूज टू शो द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज दिस। नाउ ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए जब हमने एक प्लॉट बनाया और V और I यानी करंट अलग अलग लगाने पर, करंट मतलब हमने अलग अलग तरह के करंट पास किए, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, और उसके अकॉर्डिंग देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंजेस आ रहे थे, कितना वोल्ट में चेंज आ रहा था। तो वी वर वेरी ग्लैड टू सी कि जो भी ओहम ने बताया था वैसा ही हुआ। यानी V और I का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, जो कि आपके NCERT में भी गिवन है। तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जो कि ओहम्स लॉ को पूरा क्लैरिफाई करता है। देन रेजिस्टेंस की जो कनेक्शन है, रेजिस्टेंस की जो सिस्टम है कनेक्शन का, वो या तो सीरीज़ या पैरेलल में होता है। जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, तो इसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। लाइक दिस, आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया, R1, R2, R3, ये सीरीज़ में है, और इनके पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर लगाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, इसलिए मैंने सीरीज़ में लगा दिया। ये देखो पूरे सर्किट की सीरीज़ में एम मीटर है और रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया है। और क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज़ कनेक्शन है तो सारे तीनों रेजिस्टर्स को 1, 2, 3 को मैंने सीरीज़ में लगा दिया। सीरीज़ में लगाने का मतलब है कि तीनों में एक ही तरह का करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट जा रहा है, करंट सीधा इन तीनों में जा रहा है, कोई फ्लो नहीं है, कोई डिविजन नहीं है इस करंट में। और की को भी क्लोज रखा हुआ है और बैटरी लगाई हुई है, सेल नहीं लगाया, बिकॉज देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स, तो इट मीन्स ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर आपने करंट को शो करना है। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो एम मीटर का पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव के साथ ये एम मीटर का नेगेटिव। सिमिलरली पॉजिटिव के साथ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इधर नेगेटिव होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है वाइल कनेक्टिंग दी एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। अब आपने देखा कि इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स अलग लगे हुए हैं। तो हमने लिख दिया V = V1 + V2 + V3, लेकिन तीनों में I सेम है, यानी I यहाँ जा रहा है, तीनों में एक ही जा रहा है, तो I1, I2, I3 नहीं होगा, इट विल रिमेन I। अब सिंस V = IR बाय ओहम्स लॉ, तो आप यहाँ पुट कर देंगे, I को कॉमन लेंगे और I को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, एंड यू विल गेट दिस R = R1 + R2 + R3। इट मीन सीरीज़ में कनेक्ट करने पर जो रेजिस्टेंस है वो जस्ट सिंपली ऐड हो जाता है। बट अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो रेजिस्टेंस को जब हम ऐसे रेजिस्टर्स को ज्वाइन करते हैं पैरेलल कनेक्शन में, वोल्ट मीटर तो ऑलवेज पैरेलल होगा और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में होगा, कि हमेशा हमने प्लग की और आई पास किया। तो इस डायग्राम में देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, जब हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो तीनों का सेम आ रहा है, V सेम है, लेकिन तीनों का I अलग होगा, क्योंकि जब यहाँ I यहाँ पहुँचेगा तो I 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, I1, I2, I3, यानी तीनों में करंट अलग अलग चला गया। इट मीन्स इसके अंदर पर्टिकुलरली I इज़ I1 + I2 + I3। अब I जो है V = IR, ओहम्स लॉ के फॉर्मूला से अगर हम I निकालें तो I V/R बनता है। सिमिलरली ये V/R1, V/R2 एंड V/R3। जब हम V को कॉमन लेंगे वी विल गेट 1/R = 1/R1 + R2 + R3। So this is the connection of the parallel combination. This is how we can connect the resistors in parallel and series combination. Now what is the note about this combination? जब number of resistors को हम parallel में connect करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, यानी उनको कैलकुलेट करके जो टोटल वैल्यू आएगी वो लेस होगी देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी जो हमने कनेक्ट किए थे, मानो 5 ओहम, 10 ओहम, 15 ओहम, इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो जो 5 ओहम वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और जब हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी,
इट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी जो 5 ओहम थी उससे भी कम इनकी फाइनल वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वाइल इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा हर एक वैल्यू से ज़्यादा ही होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट लेट अस सी कि ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। आप देखिए कि किसी भी मल्टीपल डिवाइस को, बल्ब हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको कनेक्ट करने के 2 ही तरीके हैं। दिस इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, बल्ब को एक साथ लगा दिया, एंड दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक लगाया फिर दूसरा लगाया। सो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एट होम आर, सीरीज कनेक्शन में जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक साथ ऑन या एक साथ ऑफ होंगे, बट पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग ऑन और अलग अलग ऑफ होंगे। लाइक इन अवर होम हम अलग अलग फैन, अलग अलग बटन से अलग अलग फैंस और बल्ब्स और फ्रिजेस या एलईडीज चलाते हैं। सीरीज कनेक्शन में अगर एक डिवाइस फेल हो जाएगा तो जितने भी उस बटन पे कनेक्ट होंगे वो सारे ही ऑफ हो जाएंगे। बट पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं है, अगर आपका एक पंखा ख़राब हो जाता है यू कैन ऑन द नेक्स्ट सेकेंड वन। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्टली सीरीज कनेक्शन में जितने भी डिवाइसेज हैं वो सेम करंट रखते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम में भी बता चुकी हूँ। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, सीरीज में सेम करंट फ्लो कर रहा है, देखिए सेम करंट है, लेकिन इसके अंदर अलग होगा और इसके अंदर अलग करंट होगा, तो इनके अंदर ये फ़ायदा हो जाता है। दैट्स वाई जितने भी डिवाइसेज हैं, फ़ैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स या बल्ब्स, इनको हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द हाफ चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी have certain topics which are needed to be discussed further. So I think that should be enough for today's session. Stay tuned to this channel and please like and share my videos. Please do comment in the comment box, all the students who are watching this video, please share this video and please do comment ताकि मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ टू try to tell me whether it is properly discussed or not, and you can also write your views about this video. Thank you. Stay tuned to this channel. Bye bye.